the previous part 1 portion of hypertension, then we started to the second part of the hypertension, how antihypertensive drug, how to treat the hypertension. In the previous video you listened about the type of hypertension. Next I started the general treatment and strategy hypertension. How to generally treat the hypertension. The first diagnosis, 3 to independent measures occur due to hypertension and the type of hypertension: primary, secondary, essential, as the white coated blood pressure. After determination of primary or secondary, after diagnosis, a well-known physician has known about what is the patient suffering with the primary hypertension or secondary hypertension. Then start, if the secondary hypertension, then start to the treatment of particular organ dysfunction. Treatment of particular organ dysfunction, like a congestive heart failure induced hypertension. First you treat the hypertension, congestive heart failure. Then automatically regulate the blood pressure. If the adrenal cancer, if the atherosclerosis, then first physician start to treat the secondary region of the hypertension, secondary cause of pathological hypertension, then automatically treat the blood pressure. Okay, primary hypertension due to the changes of lifestyle, like smoking cessation, stopping the smoking. If a person is taking drink or smoking up to long time, after some time the effect of smokes and drink increase the blood pressure, after the persistently increase the blood pressure. That includes in a primary hypertension. Weight loss करना है, वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, that increase the blood pressure, because वेट बढ़ने से ब्लड वेसल्स का ग्रोथ बढ़ जाता है, तो टोटल पेपरी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. ठीक है. प्रेगनेंसी केसेस में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि वो वेट बढ़ता है, ब्लड वेसल्स का जो है ग्रोथ और ज़्यादा हो जाता है, टोटल पेपरी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वो उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो उसके ट्रीट के लिए मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा. डाइट कंट्रोल करना है. यू डू नॉट टेक द हाई साल्ट नहीं लेना है, फैट कंटेंट नहीं लेना है. डाइट कंट्रोल करो. ये ओबीस पर्सन है तो वो भी और ज़्यादा कंट्रोल करके डाइट एज सच ऐसे मेंटेन करो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए. समझ लो. मेन साल्ट का होता है, साल्ट आप कम लो और फैट कंटेंट कम लो. ठीक है. स्ट्रेस रिडक्शन, यू डू द ऑफिशियल वर्क, या ये लॉट ऑफ वर्क यू कन्वे इन योर डेली लाइफ स्टाइल, देन समटाइम ये द स्ट्रेस. Stress is the big role in the high blood pressure in current scenario, because many functions are doing people independently, a lot of busy in different activities, that wise generally induce the stress. And stress can be reduced by your feeling, how to feel in a particular work या पर्टिकुलर पोजीशन पे आप कैसा फील कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. आप कोई भी वर्क को यदि बड़ा बना के प्रेशर लेके काम करोगे तो स्ट्रेस डेवलप हो जाता है. और सब काम, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, आपके फीलिंग पे डिपेंड करता है. आप क्या सोचते हो? कभी कभी आपको पढ़ाई बहुत टफ लगती है, लेकिन जब पढ़ाई आप खुद इंटरेस्ट के साथ रेगुलर करने लगते हो तो आपको उसी में इंजॉय आएगा, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो. समझ रहे हो? तो आपकी सब कुछ आपके बॉडी के अंदर है, ब्रेन एकदम काफ़ी आपका एक्सपर्ट है, बस आपको फील कैसे करना है वो आपको चेंज करना है. आफ्टर फीलिंग द बेटर योर स्ट्रेस ऑलवेज रिड्यूसेस. यदि आपको स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो हाँ, हमेशा आपको पॉजिटिवली सोचो, फॉरगेट द नेगेटिव थिंकिंग, देन ऑटोमेटिकली स्ट्रेस इज रिड्यूस समहाउ. लेस अल्कोहल इनटेक, those person taking alcohol regularly habitual, the reduce the taking away the smoke. That if you regulate all these functions, then primary hypertension definitely reduce. And also use some pharmacological treatment for the better cure. Pharmacological treatment classes of the antihypertensive agents or drugs: diuretics, peripheral alpha-1 adrenergic antagonist, central sympathomimetic alpha-2 agonist. Okay, after the beta blocker,
and anti-angiotensin 2 drugs. Anti-angiotensin. Okay. It also includes the ACE inhibitors also used for treatment for the in a particular same category, and calcium channel blocker and vasodilators. These drugs used for on the basis of ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन. किस टाइप का हाइपरटेंशन है और कैसे आपको ट्रीट करना है, उसको फिजिशियंस उसको डिसाइड करेगा क्या आपके प्रॉब्लम है, मेनली क्या प्रॉब्लम, उसके बेसिस पे. थायराइड डायरेटिक्स यूज करता है ब्लड वॉल्यूम, इफ इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम या एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द बॉडी, और यूरिनेशन इनसफिशिएंसी है, आपके ब्लड आपका यूरिन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ओल्ड एज में यूरिनेशन प्रॉपर नहीं होता, तो फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है. तो फ्लूइड एक्युमुलेट होगा तो वो फिलिंग प्रेशर बढ़ाएगा, फ्री लोड बढ़ाएगा, समझा, जिससे कि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. इफ द टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आर्टियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर. तो उस समय डायबिटिक्स चेक देंगे. डायबिटिक्स चेक जो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे थायराइड है, हाइड्रोक्लोरोथॉलिडोन है, हाँ, इसके लूप डायरेटिक्स में पोटेंट डायरेटिक्स है, फ्लोसिमाइड आता है, बुमेटाडीन आता है, पोटेशियम स्पेरिंग डाइट, एमलीराइड्स, स्पेनोलैक्टोन, ये पहले मैं बता चुका हूँ, स्पेनोलैक्टोन एंड डाइमेटिडीन, ओके, एंड ऑस्मोटिक डायलिसिस मेनिटॉल, एंड यूरिया आल्सो यूजेज द डायरेटिक्स बट इट कांट यूज फॉर ट्रीटमेंट. मेनिटॉल माइल्ड ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, ये यूज नहीं करते लेकिन है क्लास में. आफ्टर देन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं फॉर द बेटर ट्रीटमेंट. यदि कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसको हम किसी को कोई एडवांस इफेक्ट है उसको बताते हैं, कॉम्बिनेशन से हम बेटर ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट, हाउ टू डायरेटिक्स डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. इसको आपको जानना, हाउ टू डायरेटिक्स डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. यू नो द डायरेटिक्स, थायराइड, लूप डायरेटिक्स, वो if the use of diuretics, the site of action of renal nephron, you know, this is the renal nephron, proximal tubule, descending loop of Henle, ascending loop of Henle, distal convoluted tubules, and so on. The particular position the diuretics bind to the and increase the secretion of sodium and water. That's why decrease the blood volume. How to increase the secretion of sodium and water from the body. If the increase the secretion of sodium and water, the ultimately decrease the blood volume. You know, so how to, because that particular diuretics block the absorption of sodium ions. If the block the absorption of sodium ion, then accumulation of sodium ion is more in a lumen of nephron. For maintaining the concentration, the release of the water inside of the nephron and will increase the blood volume. Urination fast हो जाएगा. थायराइड माइल्ड डायरेटिक्स है, इसमें इनहांस होता है, 1 से 2 लीटर इनहांस हो जाता है यूरिनेशन. एंड लूप डायरेटिक्स, पोटेंट डायरेटिक्स है, ये 5 to 8 लीटर यूरिनेशन करता है. तो ओल्ड एज में यदि एक्युमुलेशन ज़्यादा हो गया फ्लूइड का, या ड्यू टू द एक्युमुलेशन फ्लूइड से ब्लड प्रेशर है, तो हम ये ड्रग यूज़ करेंगे. और यदि ये इंक्रीज हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा. देन डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, एक्यूट डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, CO में कार्डियक आउटपुट, एंड आफ्टर द क्रोनिक डिक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड कार्डियक आउटपुट. ओके, बोथ ये दोनों कम हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. And what is the diuretics adverse reaction? Diuretics का adverse reaction क्या है, इसको आपको समझना है. Business का electrolyte imbalance या depletion, hypokalemia, hyperlipidemia, hypoglycemia and gout. Hypoglycemia and gout. These are adverse effects. Dizziness, you know, and electrolyte disbalance means hypokalemia. Hypo means decrease the potassium level in a blood. Then you have to maintain, if you use the drug, then you have to make potassium sparing diuretics या potassium supplement to maintain the potassium level, because if decrease the level then also cardiac problem will enhance. That's why you need to use the potassium supplement or
पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। एंड हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड कंटेंट वेट बढ़ सकता है, लिपिड कंटेंट बढ़ जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इसलिए बताया जाता है कि वाई क्वेश्चन आता है, वाई डज थायराइड डायरेटिक्स नॉट एडवाइज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंड्यूस diabetes mediated hypertension. You know, a person suffer with the diabetes in long time, 2 year 5 year, then person also suffered with the hypertension. उसको hypertension बाद में हो जाता है। तो if a person suffer with the diabetic hypertension, then you can't give the thiazide because thiazide are enhance the glucose level in blood, then increase the precipitate या इंक्रीज इनहांस द डायबिटिक या ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, गाउट भी करता है। तो इसलिए ये ड्रग थोड़ा सा जैसे आर्थराइटिस है या गाउट है या जो है और डायबिटीज है तो थायराइड को हम इग्नोर करते हैं, नहीं देते हैं। अब कंट्रा इंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिविटी है, कॉम्प्रोमाइज ऑफ किडनी फंक्शन एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड हाइपोवोलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोवोलेमिया क्या है? डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ये तो स्वाभाविक है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यूरिनेशन हो रहा है। एंड हाइपोन्यूट्रीमिया में नाइट्रोजन लेवल कम हो रहा है, नाइट्रोजन साइड सोडियम लेवल कम हो रहा है। सोडियम लेवल कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सोडियम का एक्सेसन बढ़ गया। एक कंट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट लाइन 10 मिनट्स अब देखो। ठीक है, डायबिटिक्स। अब थेरेपेटिक कंसिडरेशन, therapeutic concern. Thiazide is the most common diuretics. Hypertension treatment generally started low dose से स्टार्ट करते हैं एंड मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। मॉडरेट हाइपरटेंशन होना चाहिए, ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन है थायराइड नहीं यूज करके हम क्या यूज करेंगे? लूप डायरेटिक्स यूज करेंगे। एंड विद द लोअर डायटी ऑफ सोडियम, अब सोडियम की डायटी में मतलब साल्ट लेना कम करो। एंड पोटेशियम सप्लीमेंट, आपको पहले बता दिया, पोटेशियम सप्लीमेंट हाई डोज पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स लेना है, इसको यदि लेना है। लूप डायरेटिक्स सीवियर हाइपरटेंशन में या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, CHF भी है, हाइपरटेंशन भी है। सीवियर हाइपरटेंशन है तो उस समय लूप डायरेटिक्स लेते हैं, और यदि इमरजेंसी कंडीशन है तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रीचेज द मैक्सिमम डायरेटिक्स 2 एजेंट्स इंडिकेटर्स। मतलब यदि मैक्सिमली देखिए लूप डायरेटिक्स ले रहा है तो हैव टू आल्सो टेक along with loop diuretics another drug that is a potassium sparing diuretics, स्पेनोलैक्टोन। मतलब 1 या 2 का कॉम्बिनेशन बना के हम बेटर ट्रीटमेंट करते हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट कम कर देते हैं, क्योंकि पोटेशियम लेवल लूप डायरेटिक्स और थायराइड दोनों में कम होता है। देखिए तो हाइपोकैलेमिया होता है, तो हाइपोकैलेमिया होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अब पहले ही बता दिया हूँ कि हार्ट का फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम किसी का कंसंट्रेशन कम हुआ तो हार्ट का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होगा। तो पोटेशियम का सप्लीमेंट देके हमको मेंटेन करना है, पोटेशियम स्पेरिंग देना है। नेक्स्ट ना, हाँ ओके यूर स्लाइड। हाँ, फिर आफ्टर दैट सेकेंड ड्रग द पेरिफेरल अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग। मैकेनिज्म एक्शन कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है स्मूथ मसल्स को। ये देखो प्री सिनेप्टिक क्लैफ्ट है अल्फा 1 का, नॉन रिफ्लिन ड्रग है, रिलीज होगा अल्फा 1 से बाइंड होगा और पास होगा। तो होने के बाद क्या होता है? वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, प्रोटोकॉल रेजिस्टेंस होता है और ब्लड प्रेशर इनहांस होता है। ये नॉर्मल फंक्शन है इसका। लेकिन यदि ब्लड प्रेशर इनहांस है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो ये तो और ज़्यादा इनहांस करेगा, ये और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि ये क्या करता है? ब्लड स्मूथ मसल्स को क्या करता है? स्मूथ एगोनिस्ट होगा तो ये पर, लेकिन एंटागोनिस्ट हम देते हैं। क्या करता है? एंटागोनिस्ट, मतलब उसको रोकते हैं। तो ये क्या ब्लॉक करेगा? कौन सा? नॉन रिपेयरिंग ब्लॉक हो जाएगा तो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा, तो बाइंड नहीं होगा तो ये टोटल पे रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करने देगा। अल्फा इपिनेफ्रिन का काम क्या है? आपको पहले ही बताया कि एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन का वर्क क्या है? ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है और टोटल पे रेजिस्टेंस बढ़ा देता है।
सिंपैथिक को एक्टिवेट भी करता है। तो ये कंट्री वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू इनहांस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम इसका ब्लॉकर देते हैं। जब ब्लॉकर के ब्लॉक कर देंगे तो एड्रेनालिन ब्लड में रहेगा लेकिन रिसेप्टर में बाइंड नहीं होगा। जब बाइंड नहीं होगा तो वो कंट्रिक्ट नहीं करेगा और टोटल प्रेशर तब घट जाएगा और उसके घटने से क्या होगा, आगे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इसका ये इससे क्या होगा, वेसोडाइलेशन इफेक्ट होगा, रिड्यूस द टोटल रेजिस्टेंस इस ब्लॉकर देने से। ओके, नेक्स्ट आफ्टर द अल्फा 1 एंटागोनिस्ट का एडवर्स में नोजिया, ड्राउजनेस, पोस्चर हाइपरटेंशन फर्स्ट डोज ऑफ ये क्या है कि नोजिया, ड्राउजनेस, पोस्चर हाइपरटेंशन। पोस्चर हाइपरटेंशन का मतलब जिस पोस्चर में आप बैठो लंबे टाइम तक बैठे हो तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा, इसको पोस्चर हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इसके जो कंट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है इसके होते हैं, लेकिन जनरली सेफ ड्रग है, ज़्यादातर हम देते हैं ड्रग को। और ये जो है नो रिफ्लेक्ट टेकिकार्डिया इन स्मॉल डोज टेकिकार्डिया। अब देखो इसमें टेकिकार्डिया की बात कहाँ से है, आप समझ रहे हो? क्या होता है कि फर्स्ट यदि हाई डोज देते हैं तो एड्रेनलिन ब्लॉक होता है, चाहे नॉन एड्रेनलिन ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक होने से क्या होगा, और रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो बॉडी को अब आपका मैकेनिज्म है ना न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल, आपका नॉर्मल मैकेनिज्म ब्लड, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो ड्यू टू न्यूरोनल इफेक्ट, एड्रेनलिन है ना, न्यूरोनल इफेक्ट क्या होगा कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो ऐसे नोड पे एक्ट करता है, तो वेसोनल कंट्रैक्शन बढ़ा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देता है, तो ये टेकिकार्डिया हो जाएगा वहाँ पे यदि लार्ज डोज जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले स्लाइड में बता दिया है कि आपको स्मॉल डोज से स्टार्ट करना है। इन्हें गाइडेंस ऑफ फिजिशियन जो एडवाइस करें फिजिशियन उसके हिसाब से स्मॉल डोज से लेना है। यदि ज़्यादा डोज दिया तो टेकिकार्डिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपको पता है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाने से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और सिंपैथेटिक जो है ऐसा नोड पे एक्ट करता है। एक्ट करने से वेसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ने से कार्डियो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर टेकिकार्डिया हो जाएगा। टेकिकार्डिया समझते हो ना, बस ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया आप जानते हो, ठीक है। डू नॉट इम्पेयर द एक्सरसाइज टॉलरेंस इफ यूज इन डायबिटीज, अस्थमेटिक एंड हाइपोकैस्टेमिया। जिसको डायबिटीज है, अस्थमा है, यदि ये सब साथ होकर हाइपरटेंशन है तो इसको हम यूज़ करते हैं, ये सेफ है, समझ रहे हो। अस्थमा में बीटा ब्लॉकर नहीं देते क्योंकि बीटा ब्लॉकर सेलेक्टिव न देके प्रोपेनॉल दे देते हैं। कई बार क्वेश्चन का वाइड है, नेक्स्ट में मैं बताऊंगा, अभी स्लाइड आएगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। ये देते हुए माइल्ड मॉडरेट हाइपरटेंशन में द ऑफन यूज द डायरेटिक एंड बीटा ब्लॉकर एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट आफ्टर द सेंट्रल sympathomimetic drug, central sympathomimetic। mimetic means alpha 2 agonist, mimetic means agonist, समझते हो ना आप। अगर ड्रग इसका क्लोनिडीन है और मिथाइलोडोपा, ये सेंट्रल है। ये क्या करता है, साइड इफेक्शन जो सेंट्रल नंबर मेडुलरी है, कार्डियोवास्कुलर इंटर क्लोनिडीन अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होने के ये क्या करता है कि ये स्मूथ मसल्स को डायलेट करते हैं। जैसे देखो सेंट्रल अल्फा 1 में एड्रिनल स्टिमुलेशन होता है, एड्रिनल स्टिमुलेशन से क्या होता है, पेरिफेरल सिंपैथिक इनहिबिशन हो जाएगा। आफ्टर द डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ नॉर्मल एपिनेफ्रिन रिलीज, उससे डिक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिक्रीज द नॉन एपिनेफ्रिन कम हो जाता है और वेसोडाइलेशन घट जाता है और टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन सेंट्रली एक्ट करता है, ये न्यूरॉन्स ब्रेन पे मेडुलरी सीएनएस मेडुलरी पे एक्ट करता है और ये वहाँ से एक्ट करने के बाद ये वेसोडाइलेशन इफेक्ट देता है। फिर इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ड्राई माउथ, सडेशन, इम्पोटेंसी होता है। मेल में इम्पोटेंसी इंड्यूस करता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। और थेरेपेटिक कंसीडर फर्स्ट लाइन जनरली नॉट ए फर्स्ट लाइन ड्रग है। मिथाइलोडोपा चॉइस ड्रग है प्रेगनेंसी, चॉइस है प्रेगनेंसी मतलब पेशेंट इफ द पेशेंट ड्यूरिंग द हाइपरटेंशन आफ्टर ड्यू टू द प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के टाइम हाइपरटेंशन हुआ तो चॉइस ऑफ द मिथाइलोडोपा।
क्योंकि ये देखो, और ड्रग हम क्यों नहीं यूज करते हो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा जैसे जैसे आएगा। लेकिन इसको हम यूज करते हैं क्योंकि ये वेसोडाइलेशन इफेक्ट देता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन एक जैसे होता हो तो फिजिशियन पे डिपेंड है कितना हाइपरटेंशन है, लेकिन ये सेफ ड्रग है। सेफ ड्रग किस पॉइंट ऑफ व्यू से है आप जानते हो? ऑन द फीटस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जानते हो कि प्लेसेंटा इनकम्प्लीट बैरियर है। जब ड्रग जाती है तो ड्रग ब्लड में आने के बाद वो सिंपली पास आउट हो जाएगी फीटस में, तो फीटस को टॉक्सिसिटी इंड्यूस करती है। तो मे भी एबॉर्शन हो सकता है या कोई जो है प्रॉब्लम आर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम जनरली ड्रग्स नहीं लेते हैं, लेकिन यदि लेना पड़ा तो मिथाइलोडोपा लोगे, ये क्रॉस भी करेगा तो कोई फीटस को इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग यूज से वाटर रिटेंशन हो जाता है, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर बीटा एडर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग है, ठीक है। इसमें प्रोफेनॉल और मेटाप्रोल, एटेनोलाल, नोडोलोल ये ड्रग यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स देखो, इसमें बीटा 1 सेलेक्टिव यूज करना है। प्रोफेनॉल हम यूज नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब कोई रिस्पायरेटरी इनसफिशियंसी है, रिस्पायरेशन